کریں اپنی زندگی کے اندر، تو آپ آگے موو آن کریں گے، تو آپ کو زندگی کا پتہ چلے گا کہ کیا آپ کے لیے صحیح ہے، کیا غلط ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو عطا فرمایا، ان کو کیا عطا فرمایا؟ ان کو علم عطا فرمایا، ان کو شعور عطا فرمایا، جو ہمارے دماغ کے اندر موجود ہے، ہمارے اپنے اندر شعور موجود ہے، تو وہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو اس کو خرچ کریں، اس کو یوز کریں، اپنے دماغ کو اپنے اپنے اچھے اور برے عملیات عمل کر کے اپنے دماغ سے سوچیں اور سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا اس کو کیسے یوز کرنا ہے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے. جب اس کو یوز کریں گے، کو خرچ کریں گے، اپنے دماغ کو استعمال کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا صحیح اور غلط کا فیصلہ کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. یہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے. یہ جو لوگوں نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں باتیں وہ بالکل غلط ہیں. ہیر آپ کو اوپر تو لے لوں لیکن آپ بات نہیں کر سکیں گے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو بھی، تو اگر آ جائیں بے شک. لیکن میں کیوں قرآن پڑھ رہی ہوں تو میں چاہوں گی آپ بیٹھ کے سنیں، اور جب میں ختم کروں گی، جب کوشچن آنسر ہوں گے، اس وقت آپ بے شک آ کے تو بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ابھی پڑھ رہی ہوں تو اس وجہ سے میں کسی کو الاؤ نہیں کروں گی. پلیز مہربانی السلام ہوگی علیکم. آپ نہیں لوگوں کی. نہیں نہیں، مجھے بات بھی نہیں اچھا اچھا بولے، سوری میں نے آپ کو نہیں میں نہیں، نے مجھے میوٹ تلسی کر بھائی دیا. سے میں نے ایک میسج دینا تھا، اس کے بعد میں جاؤں گی. تلسی بھائی سن رہے ہیں آپ مجھے؟ السلام علیکم. وہ دور ہوں تلسی گے، بھائی آپ آپ مجھے بول دیں. سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں، آپ بول دیں. اچھا تلسی بھائی، میں نے ابھی ایک نا براٹ میں نے شیئر کیا ہے. ویسے تو 2 گھنٹے کی وہ براٹ ہے. یہاں سے فارغ ہوگا نا، ذرا اس براٹ پہ جائیے گا تو پھر اس براٹ کے بارے میں پھر گفتگو کریں گے آپ سے. ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ. I اور will, I will, جو I لوگ will. اور اعوذ اوکے باللہ اوکے من اوکے الشیطان اوکے. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ اس کی نا لیکن آپ چوتھی نے تو آیت پہ یہ نہیں آگے کہنا ہیر ہم نے لوگ وہی شیئر سورہ کی ہے بقرہ براٹ کی مجھے. چوتھی آپ آیت پہ ہیں. پلیز کیری آن. اور سوری میں نے جو آپ کو لوگ ڈسٹرب کیا. تم سوری پر میری معذرت. اور جو کتاب جو تم نہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو تم پر نازل ہوئی اور جو تم سے پہلے نازل ہوئی. یہاں پہ کتاب کا ذکر نہیں آ رہا، لیکن لوگوں نے اکثر جگہ پہ یہاں پہ کتاب کا وہ ذکر کر دیا گیا. لوگوں نے کتاب کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ کتاب لکھی ہوئی ہے، حالانکہ کتاب کا ذکر نہیں ہوا ہے. اور جو تم پر نازل ہوئی اور جو تم سے پہلے نازل ہوئی، سب پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پہ اگر عربی میں پڑھیں گے نا تو یہاں پہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ وهم آخرات هم یوقنون. یہاں کتاب کا ذکر نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو جب عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تو اس کی انہوں نے غلط ٹرانسلیٹ کر دی ہوئی ہے لوگوں کے لیے. تو میرے خیال میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کتاب کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں ہو رہا ہے اور جو کہ تم پر نازل ہوئی اور جو تم سے پہلے نازل ہوئی. یعنی جو لوگ، جیسے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، سب جب قرآن پڑھتے ہیں، جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا جتنے بھی لوگ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ وہ جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کے اندر نازل ہی کیا. ہر انسان کے دماغ میں جو چیز آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف آتی ہے. اور کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کس نے نازل کیا ہے؟ پوری دنیا کو کس نے نازل کیا؟ ہر چیز کو کس نے نازل کیا؟ اگر دیکھا جائے، صرف مجھے یہ بھی بتا دیں کہ شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے اور فرشتوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ وہ شیطانوں کو بھی اسی لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو سکھا سکیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھ کے آگے موو آن کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ اس لیے اچھائی اور برائی جو ہے اس کو جا کے دیکھنا اس لیے ضروری تھا تاکہ ہم اس سے سیکھ سکیں کہ کتنی حد تک ہم نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنی ہے. تو ہمیں پتہ چلے گا کہ برائی جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے. یہ چیز ہمیں کرنی تھی. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. تم پر نازل ہوئے اور تم سے پہلے نازل ہوئے، سب پر ایمان لاتے ہیں. ہاں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہی کر رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے جو سیکھا تو وہ ظاہری سی بات ہے، جس انسان سے یا جس لوگوں سے انہوں نے سیکھا تو اس حساب سے تو وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے. تو ہمیں ان کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اپنے حساب سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہمیں پتہ چلی جو باتیں، ہم ان باتوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو باتیں تھی ان میں سے کیا ٹھیک تھا. آپ کو جو پہلے بتائی گئی ان میں سے یہ بات آپ کی ان سے سنیں گے، پوچھیں گے، تو وہ جب ہمیں بتائیں گے تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات غلط ہے. آگے چلتے ہیں. ہاں،
وہ میں بتا دوں گی آپ لوگوں کو نا، جنات آپ کو اور ونٹر آپ کو بتا دوں گی وضو کرتے کیسے ہیں۔ ویسے میں ایک دفعہ بتا چکی ہوں، دوبارہ آپ لوگوں کو جب اس آیت پہ پہنچوں گی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے وضو، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور میں جو آپ لوگوں کو اکثر چیزیں بتاتی ہوں، میں روحانیت کی طرف پہ بتاتی ہوں کہ روحانیت اس میں کیا ہے، قرآن کے اندر روحانیت کیا ہے، کیونکہ ہر آیت کی ایک روح بھی ہوتی ہے، جیسے انسان کے اندر روح موجود ہے نا، اسی طرح آیتوں کی بھی ایک روح ہوتی ہے جو انسانوں کو نہیں پتا، بہت سارے انسانوں کو نہیں پتا کہ اس کی روح کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، ٹھیک ہے؟ سب پر ایمان لاتے ہیں، میں تو سب کے اوپر ایمان لاتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو کریکٹ ویسے نہیں کرنا جیسے لوگ کرتے ہیں، تم نے تو یہ غلط بول دیا، تم نے یہ جھوٹ بول دیا، دیکھو فلانی چیز تمہاری ایسے ہے، میری چیز ایسے ہے، یہ جو بیچ میں نکالنے کیڑا نکالنے آ جاتے ہیں نا لوگ، تو ان کے بارے میں پہلے سے بتا دوں آپ کو کہ جو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کو کیوں بتایا جا رہا ہے، اس کو کس طرح سے بتایا جا رہا ہے۔ جب ہم لوگ وضو والی اور باقی چیزوں پہ بھی پہنچیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے لکھا ہے ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین کیا ہے؟ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری آخرت ہوگی، اسی دنیا کے اندر ایک آخرت ہونی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس دنیا میں ہم آئے ہیں، جہاں پہ پہنچے ہیں، اسی دنیا کی ایک آخرت بھی ہے، اس دنیا کی شروعات بھی ہے، اس دنیا کی ایک آخرت بھی ہے، اور ہم لوگ جب پیدا ہوئے تھے وہ ہماری شروعات تھی، اور ہمارا زندگی جو گزاری وہ، اور زندگی کے آخر میں جو ملے گا ہمیں وہ اسی دنیا کے اندر جو ہمیں ملے گا ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، دوسری دنیا میں جب جائیں گے اس کا ہمیں وہی پہ بتایا جائے گا، فی الحال اس دنیا کی جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اسی دنیا کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ یقین رکھیں کہ ہمیں رزلٹ جو ہے وہ اسی دنیا میں ایسا زبردست ملے گا، اس اچھائی کے لیے اگر آپ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو کمال کی زندگی ملے گی۔ یہی لوگ اپنے پروردگار آم، یہی لوگ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو یقین رکھتے ہیں کہ ہم سے جو پہلے لوگ آئے انہوں نے جو باتیں بتائیں، جو انہوں نے سیکھا وہ بھی سچ ہے، جو ہمارے جو آخر میں آئیں گے وہ بھی سچ ہوں گے، وہ بھی ان کو بھی ہم نے سکھانا ہے، یا ہم نے سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، دونوں کام جو ہم نے سیکھے وہ ہم آگے بتائیں گے، اور جو سکھائے جو خود کو ہمیں پتہ ہے وہ ہم نے آگے سکھانے ہیں، اور یہی نجات پانے والے ایسے لوگ جو آخرت کے اوپر، اس دنیا کی آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ نجات پائیں گے اور وہی آگے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ورنہ جو لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ نجات پانے والے نہیں، ان کو اس دنیا میں بھی نہیں ملے گی کچھ بھی، اور اس دنیا میں بھی جہنم میں رہیں گے، اور اگلی جہان جو ہے جہاں پہ جانا ہے جن نہیں پتہ کہاں جانا ہے، لیکن وہاں پہ بھی یہ ادھر ہی رہیں گے، اسی دنیا میں اگر واپس آئیں گے، اگر واپس آئے، میں نہیں کہہ رہی کہ آئیں گے، لیکن میں کہہ رہی ہوں اگر اسی دنیا میں کوئی انسان واپس ایم اسرائیل آ گئی ہیں، ایم اسرائیل ذرا اوپر آنا، آپ کو کل میں نے نا سسٹر آپ سے نا ایک بات کرنی تھی جو رہ گئی تھی، میں نے اس کو لوکی کو بولا تھا آپ آئیں گی تو میں اوپر لے لینا آپ سے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ جی سلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک سلام ہوں، آپ سلام کیسے ہیں؟ سلام، میں ٹھیک ہوں ڈیئر، پتہ ہے کل کیا ہوا ہے؟ میں نے نا کل آپ لوگوں کے ساتھ نا میری طرف سے تھوڑی چیزیں آتی ہوئی ہے جس کے لیے سب سے پہلے تو میں معافی مانگوں گی، وہ یہ کہ آپ نے اپنی کتاب سے جو بتایا، جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے آپ نے ایز اٹ از ہم لوگوں کو بتایا، ٹھیک ہے؟ تو ہماری سائڈ کے جو لوگ تھے، جو دوسری سائڈ کے جو لوگ تھے، میں ہماری تو نہیں کہوں گی، میں دوسری سائڈ کے لوگ جو کہوں گی، انہوں نے دو چیزیں مجھے ان کی غلط لگی، وہ بھی ہے نہیں ورنہ میں ان کے سامنے ہی بول دیتی۔ اس میں سے ایک چیز تو یہ تھی جب آپ نے بتایا قرآن کہ وہ سوری پوری جو روئے زمین کے جتنے بھی جاندار ہوں گے ان کو کشتی کے اندر جوڑا جوڑا کر کے لے کے جائیں گے، تو یہ بات شاید ہماری سائڈ والے یا اس سائڈ والے، دوسری سائڈ ہماری نہیں سوری دوسری سائڈ والوں کو ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ روئے زمین کے جتنے بھی جانور ہوں گے یا جتنے بھی جو کچھ بھی ہوگا جاندار ہوگا ان کو لے کے جانا ہے، جو پانی کے اندر ہے وہ تو پانی سے باہر نکلتے ہی مر جائیں گے خود بخود، ہاں جی، ہے نا؟ بالکل تو وہ چیز ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو تو پانی کے اندر رہیں گے تو ان کی زندگی ہے، پانی سے باہر ہاں، آئیں گے تو ویسی زندگی نہیں ہے ان کی، بالکل تو یہ شاید ہمارے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور ایک اور چیز آپ نے جو بتائی تھی
अम, दूसरी एक और भी थी, रुके मैं सोच लूँ मुझे ना याद नहीं आ रही। लौकी जरा याद करवाना मुझे, कौन सी वाली थी? लौकी जरा 1 मिनट के लिए ऊपर आना। और मैं नहीं नहीं, आपको माजरत करने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, बहन हाँ, भाई आपस में हैं, बिल्कुल, हम बिल्कुल। लोग बात कर सके। और ये मुझे अच्छा लगा, मुझे आपकी ब्रॉड बहुत अच्छी लगती है, आप मौका देती हैं, तो जो मैं इसके लिए आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सबकी बात सुनती भी हैं तहम्मुल से, और कोशिश पूरी करती हैं कि मेरी ब्रॉड पे कोई ऐसी वैसी बात ना हो। थैंक यू सो मच। आप किसी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करती, ये भी बहुत अच्छा हाँ, लगता है। यार पता है क्या हो जाता है, कभी कभी लोग आते हैं ना तो वो, यार मेरे लिए तो सब मेरे एक जैसे हैं, गेस्ट है मेरे लिए। हाँ, चाहे वो मजहब का, तो मैं किसी को देखती ही नहीं हूँ कि कौन किस मजहब से है। लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान की इंसल्ट कर रहा है, तो वो ये नहीं सोचता कि वो भी तो इंसान ही है जो दूसरा आ रहा है। बिल्कुल। लोकी, लोकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो मुझे याद करवाना, वो दूसरी वाली मैंने कौन सी वाली बात की थी आपसे? सभी को भी। दूसरी बात कौन सी थी? जी, एक ये थी, और दूसरी वाली एक और बात जो हम लोगों ने सोची थी कि वो, हाँ, इनके साथ मैंने ज्यादती की, वो कौन सी थी? एक और भी थी ना बहुत सी तो यार। बातें थी कि जो है वो जो हवारिन थे वो जो भाग गए थे इस तरह करके हाँ, वो लोग हाँ, जाति हाँ, कर रहे हाँ, थे इसके साथ। हवारीन वाले ये ना। भी है। और वो मैं क्या कहूँ अपने लोगों को कि वही गलत कर रहे थे। वो सलीब को फांसी का बंदा बना दिया। सलीब को फांसी बना देखे दी, ना हाँ। क्या। हाँ, तो और ये ये वाली चीज ना, अच्छा ये अपनी वाली तरह हम से। लोगों ने सोचा, जी। तो ये वाली, हाँ, मुझे ये बात याद आ गई है कि पता है क्या, वो ये थी कि जब इनको जो जिसने लिखा, पॉल और मैथ्यू और लूक और ये सारे जिन्होंने किताब लिखी थी, देखो, वो लोग अगर झूठे होते या वो गलत होते, तो फिर वो ये सारी की सारी बातें लिखते ही क्यों? उन्होंने तो हर बात सच्ची और झूठी हर बात ही लिख दी उन्होंने किताब के अंदर। जब एक इंसान सच्ची भी बात लिख रहा है, झूठी भी बात लिख रहा है कि हम लोगों ने ये गलत गलत किया, ये सही सही किया, तो इसका मतलब है उनको एहसास हुआ, तो उन्होंने लिखा ना ये सारी चीजें बाद में आके। बिल्कुल। और ये जो चारों हवारी चार अनाजील है जो हमारे पास है ना, जब यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ पूरी दुनिया को मेरे शागिर्द बनाओ, और ये खुशखबरी अंजील जो है ये पूरी दुनिया में सुनाओ। तो वो लोग फैल गए थे दुनिया में, उन्होंने हाँ, फर्क फर्क खित्तों में बैठकर अनाजील लिखी। ये नहीं था उनका उनका कोई कांटेक्ट नहीं था, ना उस वक्त कोई मीडिया था, ना फोन था कि वो आपस में बातें करते हो ना। एक लेटर पहुंचाने के लिए भी उन्हें महीने लग जाते थे ना, तो वो उनका आपस में कांटेक्ट नहीं था। ये तो बाद में जब उन्होंने कंपाइल की सारी अनाजील, तो सब में एक ही बात वो लिख रहे हैं, एक ही बात। हाँ, हाँ, तो क्योंकि ये देखो, हम लोगों ने ना बाद में, मैंने सोचा था इस बारे में कि आप लोगों की ये चीज बिल्कुल सही थी। हाँ, दूसरे वाली साइड से थोड़ा सा शायद समझ नहीं आया होगा, वो भी मैं उनको गलत नहीं कहती हूँ। लेकिन देखो, कभी कभी इंसान है तो इंसान से गलती हो जाती है, तो वो कर हाँ, सकता है, कभी भी गलती कर सकता है। तो ये जब वो आएंगे तो मैं उनसे भी बात करूंगी, ये खाली आपको नहीं। लेकिन आप लोगों की बात जो थी वो वैलिड थी। लेकिन ये है कि कभी भी हम लोगों को ना दूसरे को इंसल्ट कभी भी नहीं करनी चाहिए। दूसरों को एज इट इज लेके चलना चाहिए कि वो भी हमारी तरह के इंसान है, और उनको भी तकलीफ हो सकती है, जैसे हमें तकलीफ होती है उनको भी होती है, सारी सी बात है। आप किसी दूसरे की किताब के अंदर झांकेंगे और उसमें से बुराइयां गलतियां निकालेंगे, जैसे कोई भी इंसान जो होता है ना, वो दूसरे की किताब के अंदर से या दूसरे के जिसको वो चाहता है उसकी वो गलतियां निकालेगा और उसकी बुराइयां निकाल के आपको हाईलाइट करेगा, तो जाहिर सी बात है उसको तकलीफ होगी। वो इंसान है, कोई फरिश्ता तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको तकलीफ ना हो। इस दुनिया में आया तो तकलीफ तो होती है। तो हमें चाहिए कि हम किसी इंसान के ऐसे जो अकाबरीन है या जो बड़े हैं, उनको उस तरह की तकलीफ ना दें, लेकिन सच बता दें कि देखो ये सच ये है। अब आपकी मर्जी, आप उसके ऊपर यकीन करते हैं या नहीं करते, ये आपकी अपनी मर्जी है। इस तरह कर सकते हैं। और वो लेकिन खुद अपनी अपना जो वो अकीदा रख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं किसी चीज का जवाब नहीं दे सकता, नहीं नहीं, दूंगा, वो नहीं, खुद नहीं, ही वो सब बात उनकी ठीक थी, मैं उनकी साइड इसलिए लूंगी, वो भी है तो नहीं, लेकिन वो जो बात कर रहे थे ना, क्योंकि वो किसी चीज, इन चीजों पे, वो सामने की चीजों पे बिलीव रखते हैं कि जो हमने सामने देखा है ना, वही जो होगा वही सच है। जो हमने सुनी सुनाई बातें हैं ना, उसके ऊपर हम बिलीव नहीं करते, वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर बिलीव नहीं करते। ये बात मुझे पता है उनकी ना, ये बात सच हाँ। है।
کہ وہ کوئی आके बता दे, जब तक उनके पास फैक्ट नहीं आएगा ना, वो तब तक बिलीव नहीं करते उस चीज के ऊपर. ये उनका है वैसे. नहीं, लेकिन देखो ना, अगर हम दुनिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, बादशाहों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो तो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी किताबों से पता चलता है कि उस टाइम के लोग किस सकाफत में रहते थे, उनके ट्रेडिशंस क्या थे. हम ये नहीं अच्छा, कह सकते कि वो नहीं थे इस दुनिया में. नहीं एक देखो, tradition में पाया फिर जाता था. फिर जैनब पता है जैनब आप मुस्लिम थी क्या पहले, एक्स मुस्लिम हो आप? नहीं. अच्छा अच्छा ठीक है. जैनब नाम मैंने कभी सुना नहीं ना क्रिश्चियंस में, तो इसलिए पूछ रही हूँ. अच्छा. हाँ, तो इसलिए मैंने बोला. अच्छा, दूसरा ये कि ये जो किताबें हैं, अगर किसी ने कोई झूठी किताब लिखी होगी ना, आई एम इज़राइल, तो उस किताब के अंदर से ही हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है. हम लोग जितने भी लोग हैं ना, हम वही तलाश करने की कोशिश करें कि देखो हमारी जो अपनी जो कुरान है, इसके बिल्कुल अगेंस्ट चली जाती है. जो हदीस की किताबें हैं ना, वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है. कुरान अलग कुछ और बोल रहा है, हदीसें कुछ और बोल रही है. जैसे मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई कि जिसमें लिखा है ईसा इब्ने मरियम जो है वो अल्लाह का कलाम है. ठीक है, कुरान ये कह रहा है, लेकिन इन्होंने बोला कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है. तो यहाँ से तो बिल्कुल अगेंस्ट हो गई, इसके खिलाफ हो गई ये बात, कुरान के खिलाफ है ये बात. तो इन लोगों ने जो झूठ फैलाया हुआ है, हम उस झूठ को साबित करेंगे और कुरान के अंदर से ही करेंगे. हम मुस्लिम हैं, लेकिन कुरान के अंदर जो इन्होंने झूठी बातें फैला के रखी है, उनको हम खत्म करने के लिए आए हैं. हाँ. और हाँ, ये वर्ड ऑफ गॉड जीसस को अंजील यस, में, आई नो, मुझे ये पता है. यूहन्ना की देखो, इंजील में कहा गया आपकी हुआ. बाइबल में भी यही लिखा है, आपके इंजील में भी यही लिखा है और कुरान में भी यही लिखा है, लेकिन इन्होंने कुरान को चेंज करके इन्होंने ट्विस्ट किया हुआ है. ये जो कुरान को मानने वाले हैं ना, इन्होंने कुरान का गलत सारा तर्जुमा करके लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है. तो हम लोग जो हैं, हम यही करेंगे कि कुरान के अंदर जो चीजें इन्होंने झूठ फैलाई हुई है, वो हम निकाल के इनके मुंह पे मारेंगे, जिन्होंने झूठ फैलाया है. ठीक है. अब मैं ना जो कुरान थोड़ा सा पढ़ लूँ, फिर आपके साथ ना थोड़ा सा अगर आप बैठोगी तो मैं तो फिर आपको ना एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं और कुरान में क्या लिखा हुआ है. ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. अगर आप सुनना चाहो तो यू आर हाँ, मोस्ट वेलकम. लेकिन मैंने पहले ना लोकी को बोला हुआ था कि आज जैसे ही आई इज़राइल आए तो उसको ऊपर ले लेना, मुझे जरूरी बात की. ये जो बात मैंने आपसे की है ना, ये बात करनी जरूरी थी और मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ नहीं कि नहीं नहीं कल के लिए उस वक्त मैं आपको नहीं बोल सकी. प्लीज मुझे माफ करना मेरी बहन. क्योंकि हमारे लोगों यहाँ पे हमारी ब्रॉड के ऊपर थोड़ा सा ऐसा हुआ, हालांकि होना नहीं चाहिए था. आपकी किताब के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी है कि जो आपको ही समझ आ सकती है. मुझे मेरी किताब की समझ आ सकती है जो इसके अंदर लिखा हुआ है. जो जिसकी किताब नहीं होगी वो उसको पहचान नहीं सकेगा, वो उसको बता नहीं सकेगा, एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा. जाहिर सी बात है, दूसरा जो बाहर से आएगा वो एज इट इज नहीं जानता होगा. जिसकी किताब है वही ज्यादा बेहतर बता सकता है आपको उस किताब के बारे में. हाँ, वो बाद में मुझे एक हवाला याद आया जो हाँ, वो बार बार कही जा रहे थे, हवाले भाग के. मुझे बाद में हवाला याद आया कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद कहा उनको, हाँ, सिपाहियों को कहा कि इनको जाने दो, तुम लोगों को, तुम मुझे पकड़ने आए, मुझे हाँ, पकड़ो. पकड़ो, वो बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे मुझे भूल याद है. गया हवाला देना. जॉन की हाँ, इंजील में ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उनको सिपाहियों को कहा कि मुझे आप पकड़ने आए, मुझे पकड़ो, लेकिन इनको जाने दो. इसलिए वो जाने वहां से दो. चले गए थे, वरना तो पतरस ने तो हमला कर दिया था, उसने तो कान काट दिया था पुलिस सिपाही का. हाँ, और वो देखो बाद में जो कुछ भी हुआ उनके जाने के, वो जब चले गए थे, लेकिन वो फिर भी साथ ही रहे. उन्होंने जो किताबें लिखी है इसलिए लिखी ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारी मजबूरी क्या थी, कि हम लोगों को मजबूर होना पड़ा. क्योंकि वो जीसस की बात भी सच हो जाए और हम लोगों ने जो बोला था कि जो हमने किया, हम अपनी चीजों को भी हाईलाइट कर दे. देखो, उन्होंने झूठ नहीं बोल, अगर वो झूठ बोलना चाहते, किताब के अंदर लिखना चाहते तो वो लिख सकते थे. वो सारा झूठ लिख देते कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं था, हमने तो सारा कुछ ठीक ठीक किया था. उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने एज इट इज लिख दिया जैसा एज उन्होंने इट किया इज, था. हाँ जैसा जी. जैसा हुआ सब शागिर्दों ने वैसे ही हाँ. लिखा कि ऐसे हुआ, यहाँ पे ऐसे. वो सिर्फ उस जाए, कहते हैं ना, जाए वारदात से भागना, वो यस. वहां से सिर्फ भागे थे. वो हाँ. पीछे पीछे थे, क्योंकि पतरस रसूल जब सेहन में जाते हैं यीशु मसीह के पीछे पीछे,
जब वो इनकार करते हैं 3 दफ़ा, फिर वो अच्छा रोते भी हैं कि जब मुर्गी बांग देती है उन्हें याद आ जाता है कि खुदावंद ने मुझे कहा था तू आज ही मेरे लिए 3 दफ़ा इनकार करेगा। फिर वो रोता है, ज़ार ज़ार वहाँ लिखा, वो ज़ार ज़ार रोया। इंसान कब रोता है? जब वो पछताता है बचता कि है, मैंने ये बिल्कुल क्या किया। बिल्कुल। और यहाँ पे अच्छा, आप कैथलिक हो? आप कैथलिक हो हाँ या? जी, मैं कैथलिक हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे आप बताओ कि कैथलिक में ही वो होता है ना, वो जो चर्च में जाते हैं और वो बीच में एक साइड पे ये क्या उसका नाम है, पास्टर बैठे होते हैं और एक साइड पे वो इंसान आके बैठता है, बीच में दीवार होती है और वो अपनी अपनी चीजें बयान करता है जो उसने किया होता है। वो कैथलिक में होता है या किसी और में होता है? वो जो अपने गुनाहों का इकरार करना होता इकरार है, करना, हाँ हाँ हाँ, हाँ वो फादर्स उसका हाँ सुनते हैं। हाँ हाँ वो उसका चेहरा नहीं ना देख सकते कि जो हाँ, इंसान अपने गुनाह का। मुझे पता है, हाँ पास्टर। हम्म, हाँ जी, वो वो किस में कैथलिक होता है, में। वो कैथलिक में? हाँ, कैथलिक में। ओके, मैं आपको बात बताती हूँ, यहाँ पर भी आपको पता है हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले ना हम लोगों ने ये एक बात की थी। आज मुझे उस चीज का याद आया कि हम लोगों के बीच में भी पर्दा है। यानी हम लोग किसी ना, आप मुझे देख सकती है ना मैं आप देख सकती हूँ, लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोग मौजूद हैं। और मैंने उस वक्त यहाँ पे एक चीज की थी, मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि आप लोगों के अंदर ऐसा भी होता है। मुझे जहन में भी नहीं था कि ऐसा होता है कि वो ये गुड मॉर्निंग। उसमें ये होता है कि मैंने सब लोगों को बोला कि आए आज सब लोग अपनी बुराई अच्छाइयाँ तो सारे बयान करते हैं। आज पहली दफा आए अपनी अपनी कोई गलती मिस्टेक कोई ऐसा चीज जो आपको लगता हो कि हमने अपनी जिंदगी में की और अपने आप को सुधारना चाहते हैं, वो करने की कोशिश करें, यहाँ पे बयान करें। आप यकीन करें बहुत सारे लोग आए और लोगों ने आके अपनी अपनी चीजें बयान भी की। मैंने सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, पता है मैंने स्टार्ट किया अपनी तरफ से कि चलो मैं बताती हूँ ताकि लोगों को तकलीफ ना हो कि अपनी चीजें बयान करते हुए कि हम लोगों ने क्या अपनी जिंदगी में गुनाह या गलतियां की हैं। और आपको पता है बहुत सारी चीजें इसमें इस्लाम के अंदर, सॉरी कुरान के अंदर लोगों ने झूठ फैला के उनको बताया हुआ है कि ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह। हालांकि गुनाह जो है ना वो थोड़ी सी चीजें, एक शिर्क करना जो गुनाह है, लाइक खुदा के साथ किसी दूसरे खुदाओं को आप जोड़ दें, वो शिर्क जो है वो गुनाह है। फिर उसके अलावा ये गुनाह है और एक और क्या है, गीबत करना, किसी की गीबत, कोई मौजूद नहीं है उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करना। ऐसी बात, गीबत भी वो होती है कि जो आप उसके मुंह पे ना कर सके। आप अगर उसके मुंह पे वो बात कर सकते हैं ना तो आप पीठ पीछे कर लें, लेकिन अगर आप उसके मुंह पे वो बात ना कर सके, डर रहे हो, तो फिर आपने वो बात नहीं करनी, ये गीबत होती है। और फिर ये जो शराब के और ये, हाँ, गुस्से को कंट्रोल करना, अपने आप के गुस्से, ये तो खैर गुनाह नहीं है, ये तो वो हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, तो गलती में आता है गुस्सा जो है, वो गलती में आता है। और दो तीन चीजें हैं जिनको मना किया गया, बाकी सारी की सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, दुनिया में हर चीज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमें जो बताया हुआ है ना ये सब कुछ गलत बताया। ये दो चीजें जो है ना वो मेन है जो गुनाह में आती हैं। तीसरा भी अभी मैंने एक और जगह पे देखा था, वो मुझे नहीं याद आ रहा, थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा था, तो वो मैं अभी पढ़ूंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी कि तीसरी क्या चीज है। बस यही गुनाह है, तो ये खून गुनाह है। खून करना, क्या करना? खून करना, कत्ल करना। यार देखो, पता है कि जो कुरान पाक के अंदर जो खून लिखा है ना, इन लोगों को, सॉरी माफ करना, इन लोगों को पता ही नहीं था कि खून तो किसी का अलाउ ही नहीं है। किसी की जान लेना, वो वाली जान ना, दुनिया से निकाल देना, दुनिया से खत्म करके देना, ये तो अलाउ ही नहीं है किसी को भी। ना आप फांसी की सजा देना अलाउ है, ना किसी को आप इस तरह कर सके, ये तो अलाउ, किसी की जान ले ही नहीं सकते। हाँ, ये चीज कर सकते हैं, ये अगर कोई लेगा जान तो बस सकता, ये तो ले ही नहीं सकते। ये जो जान लेना, ये जो बार बार लिखा गया है ना कुरान पाक के अंदर, ये उसके नफ्स की बात हो रही है। जो हम लोगों ने जंग करनी है ना, हमने अपने अंदर के नफ्स को कत्ल करना है, हमने अपने अंदर के शैतान को मारना है, जो हमें गलतियां गलत गलत सिखाता है, जो हमें बुराइयां सिखाता है। ये उसके बारे, कुरान जो है ना वो सारा उनके बारे में बता रहा है कि इस दुनिया में रहने का तरीका बता रहा है कि इस दुनिया में रहना कैसे है। और वो जो जंग करनी थी ना, जहाँ पे जंगों का जिक्र है, वो जुबान से आपने जंग करनी है। वो जो तलवारें हैं वो हमारी जुबानें हैं, ये तलवारें हैं हमारी, क्योंकि इंसानों को पता ही नहीं कि इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, इस वजह से उन्होंने सारा झूठ फैलाया हुआ है। तो आप लोगों को जब सुनेंगी ना आप हमारी बात, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या सिखा रहे हैं और वो उन लोगों ने जो, हमारे बड़ों ने जो सिखाया वो सब झूठ सिखाया। तो वो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन्होंने बताया। अस्सलाम वालेकुम जजमेंटल, कैसे हैं आप?
तो ये इन्होंने झूठी बातें फैलाई हुई थी। हम कोशिश करेंगे जहां तक हो सके सबको इकट्ठा करने की कोशिश करें, ताकि जो भी लोग हैं किसी को भी किसी की वजह से तकलीफ ना पहुंचे। अगर किसी के पास बाइबल है तो बाइबल वाले लोगों को उनकी किताब के अंदर झांकने की कोशिश ना करें कि उसके अंदर क्या लिखा है, फिर वहां से वो ऐसी बुराइयां निकाल के लाएं जो आपको समझ नहीं आती हैं। या फिर बाकी लोग जो है वो कुरान को ऐसे ना समझे कि इसके अंदर से कोई बुराई निकाले और आपको बताने की कोशिश करें कि देखो इसमें ऐसा लिखा है वैसा लिखा। यही इस वजह से हम आप जितने भी लोगों को कुरान पाक के बारे में नहीं पता कि उसके अंदर जो लिखा है वो किसके बारे में लिखा है, तो वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। वो हम बताने की कोशिश करें ताकि सब लोगों की गलत फहमियां खत्म हो जाएं, जितने भी लोग हैं। ये मैं ना सूरह इसकी बकरा की सूरह बकरा की दूसरी वाली मैं एक और दफा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तर्जुमा पढ़ती हूँ और फिर मैं उसकी ना तफसीर पढ़ती हूँ। और जो तुम पर नाजिल हुई और तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान लाते और आखिरत पर यकीन रखते हैं। पहले मुझ पे क्या नाजिल हुआ? मेरा शऊर, मेरा इल्म, मेरा फहम नाजिल हुआ, ठीक है। और अब मेरे से पहले जितने भी लोग आए उन लोगों के अंदर भी शऊर और फहम है, लेकिन क्या सब लोगों ने एज इट इज लिया या नहीं लिया, ये देखना होगा। जब मैं बात करूंगी उनसे तो उनकी बात करने से ही मुझे पता चल जाएगा या आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों के पास कितना इल्म है, कितना फहम है। फिर वहां से आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। और फिर उनकी बातें सुनने के बाद हमने आखिरत, कौन सी आखिरत के ऊपर यकीन रखना है कि इसी दुनिया के अंदर जो जन्नत है उसके उसके अंदर हम लोगों ने रहना है। आप लोगों को जो कहा जाता है ना कि एक और जन्नत पता नहीं किसी और दुनिया में जाना है, या वो उसका उसका मुझे अभी नहीं पता कि वो कौन सी है, कहाँ है, कैसी है। हमें जो जिस जन्नत का बताया गया या जो आखिरत का बताया गया वो इसी दुनिया की जन्नत है। वो है हमारा स्टेट ऑफ माइंड। जब आपका दिमाग जो है वो हर चीज को करके, अच्छी चीज को करके जब खुश होता है, आपने देखा होगा कि किसी की मदद करके खुश होता है, तो वो वाली जो हल्की सी जो खुशी मिलती है ना, उस तरह की खुशियां जब आपकी आखिरत, जिंदगी जो आखिरत हो रही होती है, या आपका जो एंड हो रहा होता है इस दुनिया में, तो वो जो जन्नत आपको मिलती है, वो सुकून जो आपको पूरी जिंदगी का मिलना शुरू हो जाता है। लाइक एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक वो इतना लंबा हो जाता है। जब खुशियां मिलती हैं, जब सुकून मिलता है, वो बहुत लंबा हो जाता है। तो उस आखिरत के बारे में बात हो रही है कि जब आप अपनी पहली जिंदगी में अच्छे काम करेंगे तो आपकी जिंदगी का जो आखिरत का हिस्सा, आखिरी हिस्सा होगा ना, वो ऐसा कमाल का गुजरेगा कि आपको समझ आ जाएगी कि वाकई आपने किसी रब के ऊपर यकीन किया था, आपने अपने खुदा के ऊपर यकीन किया था, आपने अपने अल्लाह के ऊपर यकीन किया था, इस वजह से आपको ये सब कुछ मिला है। ये उसके बारे में बात हो रही है। यही लोग अपने परवरदिगार से और हिदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। जब वो लोग यकीन करते हैं, जैसे आप लोगों ने भी यकीन किया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यकीन किया हुआ है कि उनको निजात मिलेगी। और कुछ लोग जो है उनको, आप लोगों को पता होगा कि मसीह ईसा इब्ने मरियम के बारे में जैसे आप लोगों ने बोलते हैं, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो कुरान से पढ़ के बता रही हूँ। मसीह ईसा इब्ने मरियम जो है, मसीह का मतलब होता है मसाया, एक ऐसा मसीहा जो आपको आके निजात दिलाए। जिस जहन्नुम के अंदर आप पड़े हुए हैं, वो आपको आके निजात दिलाए, आपको बोले कि आओ मैं तुम्हें इस जहन्नुम से निजात दिलाता हूँ जिसमें तुम पड़े हुए हो, जो जिनमें आप लोगों को 5-5 वक्त की नमाजों का बताया गया कि आप 5-5 वक्त की नमाजें पढ़े। ये आपके लोगों ने बताया, लेकिन वो मसीहा आप लोगों को आके बताए, आपको बोले कि आपने ये 5 वक्त की नमाजें आपने अपने ऊपर, आपके बड़ों ने आपके ऊपर जोर जबरदस्ती से डाली हुई हैं, तो ये आप लोग बाहर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं और खुद कोशिश करेंगे। अगर आप अपने अकाबरीन को मानेंगे कि 5 वक्त की नमाजें और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो जाए मानते रहे, कोई बात नहीं। फिर आपको बाहर उसी जहन्नुम में फिर आप पड़े रहे जिसमें आपको इन्होंने डाल के रखा हुआ है। अगर आप निकलना चाहते हैं इन चीजों से, तो कुरान कहता है कि सलात जो है वो अपने आप को सलात जो है वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने का मतलब का तरीका है। इस दुनिया में, जिस दुनिया में आप आए हैं, इस दुनिया में आपने अपने आप को, अपनी जिंदगी को कैसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे गुजारना है। जब एक परिंदे को, जानवर को अपना पता है कि हमने इस दुनिया में कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है। वो जो बच्चा होता है, चिड़िया का बच्चा होता है या कोई बर्ड का बच्चा होता है, उसको भी पता होता है कि मैंने मुंह खोलना है तो मेरी माँ मेरे मुंह में आके तो खाना डालेगी। एक बच्चा जानवर का होता है, उसको ये पता है कि उसको दूध कहाँ से मिलेगा, उसकी माँ का। तो ये वाली सारी चीजें जब एक जानवर को पता है तो इंसान को नहीं पता होगा।
तो आप लोगों को तो बेवकूफ़ बना के इन लोगों ने, आपके बड़े अकाबरीन ने आप लोगों को जहाँ पे फँसाया हुआ है, तो आप अगर जहन्नुम से निकलना चाहते हैं, तो आपको कुरान पाक की ये चीज़ें बताई जा रही हैं। वो 3 सलातें हैं, ज़िंदगी की सुबह होना, ज़िंदगी की दोपहर होना और ज़िंदगी की शाम होना, ठीक है? ज़िंदगी की सुबह में आपने पूरे गलत काम और सही काम करके सीखेंगे। ज़िंदगी की जो दोपहर है, वो जो बीच वाला हिस्सा है जिसके बारे में बताया गया है, वो आपका ये है कि आपने अपने आप को अपने अंदर के शैतान के साथ जंग करनी है और उसके साथ जंग करके अपने आप को ठीक इंसान बनाना है। और वो बीच वाला हिस्सा जो है वो बहुत मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल वही है कि जब आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। वो जो लोग अपने गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं, वो निकल नहीं सकते, उनके लिए कि आपने जंग करनी है अपने अंदर के शैतान के साथ, अपने अंदर के हैवान के साथ, क्योंकि हैवानियत भी हमारे अंदर ही है। तो फिर आपको आपको ना आपके